یہ حدیث ہے اور اس کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ ہے. اور والد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ اکبر. کس کا اطاعت؟ والد کی اطاعت. آمینہ ویڈیو کو میوٹ کرو. والد کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. یعنی اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں، اللہ کے فرما بردار بن جاؤں، اپنے والد کے اطاعت گزار بن جائے. یہی وجہ ہے کچھ لوگ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ. یہ محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. جنہوں نے رسول کی اطاعت کی. سب سے پہلے رسول کی اطاعت ہمارے پر ضروری ہے. جنہوں نے رسول کی اطاعت کی گویا وہ اللہ کی اطاعت کیا. باپ کی اطاعت کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے. باپ کی اطاعت یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں، اگر باپ کہے نماز نہ پڑھو تو یہاں اطاعت باپ کی نہیں کرنا ہے. ماں کہے اچھا کام نہ کرو تو یہاں ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنا ہے. اگر غلط چیز کرنے کے لیے اگر ہمارے ماں باپ کہتے ہیں تو وہاں پہ ہم ماں باپ کی اطاعت نہیں کریں گے. ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کس میں کریں گے؟ دنیاوی کاموں میں. دنیاوی کاموں میں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی کام ہے اس میں اطاعت کریں گے، دوسری چیزوں میں نہیں. ہے نا؟ دین میں تو نہیں، گنجائش نہیں ہے. یہی وجہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہیں جنگ بدر کے موقع پر وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، جنگ بدر میں جنگ احد میں یہ ابو بکر اور باپ بیٹے دونوں بات کر رہے ہیں. ابو بکر کا بیٹا کہہ رہا ہے ابو سے، ابو جان ایک وقت ایسا بھی آیا تھا احد کے مقام پہ کہ آپ ہمارے تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں آپ کو چھوڑ دیا تھا ترش کھا کر کے، کہ آپ ہمارے باپ کو بات سنو. کہتے ہیں بیٹے اگر تم میرے تلوار کے نیچے آ جاتے نا تم کو ہم وہیں ختم کر دیتے. اللہ اکبر. شریعت میں باپ بیٹا نہیں ہوتا ہے. شریعت میں باپ بیٹے نہیں ہوتے. اس لیے شریعت کی جب بات آ جائے تو وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے پر واجب ہے اور فرض ہے، ماں باپ کی بات نہیں. والدین کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت میں ہے، اور والد کی نافرمانی اللہ تعالیٰ رب العزت کو ناخوشگوار بنانا ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے. والدین سے نیکی و حسن سلوک اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اگر آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ پسند ہے. والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کو رضا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوش ہوتا ہے. والدین جو ہے نا ہمارے ماں باپ جو ہے نا ہمارے جنت کے بہترین اعلیٰ مقام ہے. جنت میں ہم چاہیں تو چلے جائیں، جنت میں ماں باپ کو خوش کر کے ہم جنت میں چلے جائیں اور ماں باپ کو ناراض کر کے ہم جنت سے دور ہو جائیں. اس لیے ماں باپ کو خوش رکھنا، ماں باپ کے اطاعت و فرما برداری کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہمارے پر لازم ہے، واجب ہے. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. یہ ساری آیتیں، یہ قرآن کی آیتیں، حدیث مطہرہ، یہ ساری چیزوں کی دلالت کرتی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ماں باپ کی باتوں کو مانیں، ماں باپ جو حکم دیتے ہیں وہ کام کو کریں. اور ہم نے ابھی کیا بتایا تھا، اللہ کا حضرت عمر عزیز جو ہے، یعنی عمر کے پوتے جو ہے عبدالعزیز رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ تم
तुम चार चीज में, तुम चार चीज जरूर करो। पहला नंबर, तुम आलिम बनो। क्या बनो? आलिम बनो, आलिम बनो। दूसरा नंबर क्या है? मुअल्लिम बनो। तीसरा नंबर क्या है? आलिम से मोहब्बत करो। आपके जो उस्ताद हैं उनसे मोहब्बत करें। क्यों? माँ बाप आपको अर्श बरी में, कहां थे आप? आलम अरवाह में थे। और आपके क्लास का नाम क्या है? आलम हयात, है ना? आपके क्लास का नाम जो आप ज्वाइन किए हैं, इस क्लास का नाम है आलम हयात। आप कहां थे? आलम अरवाह में। आलम अरवाह में से इस दुनिया में आपके माँ बाप ने शादी किए, रिलेशन बनाए, आप माँ के पेट में आलम अरवाह से सफर करते हुए, सफर करते करते हजारों कोसों मील का सफर करते, करोड़ों मील का सफर करते हुए आलम अरवाह से रहम मादर में आए। आप रहम मादर में 6 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 10 महीना, जितना दिन रहे रहम मादर से आज आप कहां हैं? आलम हयात में। आलम हयात में है। आलम हयात में क्या करना है हमें? क्या करना है? आलम हयात में आपके माँ बाप ने अल्लाह के पटक दिया, कितना अच्छे आलिशान जगह में थे, आलम अरवाह में थे, कोई टेंशन नहीं, कोई अमल उमल का टेंशन नहीं, लेकिन माँ बाप के ताल्लुकात हुए और जमीन में हमें पटक दिए गए। और आपके उस्ताद आपको कुरान और हदीस के इल्म देते हैं, आपको कुरान की तालीम देते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता और सिखाता है, जो कुरान को सीखता और सिखाता है। और आप वो ऐसे तालिब इल्म हैं कि जिस वक्त से आप बैठे हैं इस क्लास में ज्वाइन करके, इस दरमियान अगर आपसे कुछ गुनाह हो जाता है, कुछ गलती हो जाता है, तो मालूम है चींटियां, समुंदर की मछलियां, यहां तक कि सातों आसमान में, आसमान अव्वल से लेकर के, यहां से लेकर जमीन से लेकर आसमान, सातों आसमान तक जो फरिश्ते हैं हमारे हक में दुआ करते, कहते हैं अल्लाह ये तालिब इल्म है, तेरा इल्म सीखने के लिए तेरे बारगाह में बैठा है। अल्लाह अगर इनसे कुछ गलती हो जाए, कुछ खताएं हो जाए, अल्लाह इनके खताओं को माफ फरमाना, इनके गुनाहों को माफ फरमाना। और मालूम है आपके गुनाहों को माफ कर रहे हैं। और आप अहले सुफ़ा हैं, सुफ़ा मतलब साएदार, साहिबान, और आप जन्नत के मेहमान हैं। जब तक बैठे हैं जन्नत के मेहमान हैं। आप बेहतरीन खुश नसीब इंसान हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको उस्ताद मुकर्रर किया, और आपको जो आलम अरवाह से आपके माँ बाप ने लाके जमीन में पटक दिया आलम हयात में, और आपके उस्ताद ये जमीन से, ये आलम अरवाह में से, आलम हया से आलम बरज़ख का सफर किस तरह से करना है। वो घर, वो कब्र का वो अंधेरी कोठरी, वो कब्र की वो अंधेरी कोठरी जहां पे ना लाइट है, जहां पे ना तो कोई क्या कहते हैं कूलर है, ना जहां पे कोई रोशनी है, कुछ भी नहीं है, वो अंधेरी कोठरी है। वहां बिच्छू है, वहां सांप है, वहां जहरीला बिच्छू है, वो अंधेरी कोठरी है, वो तारीखी है, वो सन्नाटे वाली जगह है, करोड़ों टीन वज़नी हथौड़े हैं, अंधे और बहरे फरिश्ते को मुकर्रर किए गए हैं जिसे अजाब देने में कोताही नहीं करेंगे, हमें अजाब देने के लिए तैयार कर रखा है। उस अजाब से बचने के लिए, उस अजाब से छुटकारा के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके पास एक उस्ताद को भेजा, एक उस्ताद को भेजा कि सुनो मेरे प्यारे बच्चों, जहन्नम से बचने के लिए, आलम बरज़ख से बचने के लिए इस दुनिया में कुरान और हदीस के इल्म को हासिल करो, कुरान और हदीस के इल्म को हासिल करो। और कुरान और हदीस के इल्म को हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन जाना पड़े, अल्लाह के नबी ने क्या शब्द यूज किया था? चीन जाना पड़े तो चीन जाना। कहां से? मदीना, सऊदी से अगर तुम्हें चीन आना पड़े तो चीन आना। इस दुनिया से दूसरी जगह जाना पड़े तो वहां जाना बेच करके। मुहद्दिसीन सहाबा में एक सहाबी जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, उन्होंने अपने घर को बेच दिया था इल्म हासिल करने के लिए। इल्म को हासिल करने के लिए अपने घर का छप्पड़ जो है अपने घर को बेच दी थी। बाप से जो जायदाद में, प्रॉपर्टीज में जो हिस्सा मिला था वो बेच दिए थे इल्म हासिल करने के लिए। अल्लाह अकबर। आपने क्या बेचा है? क्या बेचा है? वो इल्म हासिल करते थे। इसलिए क्या कहा? मुअल्लिम बनो, इल्म हासिल करने वाला बनो। आलिम नहीं बन सकते तो मुअल्लिम बनो।
अगर मुअल्लिम नहीं बन सकते तो आलिमों से मोहब्बत करने वाला बनो। अल्लाह ने तुम्हें जो दिया है उनसे मोहब्बत करो। क्यों? आप पूरी रात तहज्जुद पढ़ते रहो और एक आलिम सोते रहे, उसके आप पांव के धूल के भी बराबर नहीं हो सकते। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के नबी कह रहे हैं। और आलिम जो होते हैं, जो उलमा होते हैं, ये अल्लाह के नबी के वारिस हैं, वारिस हैं। आज आपके माँ बाप चले जाएंगे, आपकी विरासत में क्या छोड़ जाएंगे? कंप्यूटर, लैपटॉप, घर बार और प्रॉपर्टीज, पैसे वगैरह छोड़ जाएंगे। उसमें भी झगड़े होंगे, है ना? अगर 3 बेटा आया है, 1 रुपए रखे हुए हैं, उसमें झगड़ा हो गया, मैं बड़ा हूं तो मुझको इतना मिलना चाहिए। हाँ, 3 बेटा है या 4 बेटे हैं, इतने सारे चीजें हैं, तो उसमें ना क्या कहते हैं, लड़ाई हो जाती है और एक फितना चालू हो जाता है। उसके लिए मेरे बच्चों जरूरी है इस आलमे हयात में, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लास का भी नाम आलम हयात। आलम हयात में अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपने आलम अरवाह में ये वादा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या हम तुम्हारे रब नहीं? क्या हम तुम्हारे रब नहीं? हमने कहा था कालू बला, अल्लाह तू ही तो मेरा रब है, दुनिया में भेजे आप हमें ताकि मैं जाऊं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह कमर में कितना बार बार आया है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दक्किर, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दक्किर, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दक्किर। कौन है जो नसीहत को हासिल करे, जिसके लिए हमने कुरान को आसान कर दिया है। आज हमारे पास दुनिया की सारी चीजों का वक्त होता है कुरान करीम को हिफ्ज करने, या कुरान करीम पर गौर व फिक्र करने, या कुरान करीम को याद करने की हमें तौफीक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा? हमने कुरान को आसान किया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस यही वजह है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्होंने इबादत किए अमल नहीं की, यानी इल्म इबादत, जो भी इबादत किए, नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दिए, जो भी किए, उसके इल्म नहीं था उसके पास, उसके पास उसका इल्म नहीं था। उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे पूछेंगे कि तुम्हारे पास इल्म था क्या? तूने इल्म के मुताबिक तूने नमाज पढ़ा? क्या नमाज जो तुमने पढ़ी थी वो इल्म के मुताबिक था? ये वजह है जो मैंने वो कहा, बार बार कहा था, क़यामत के दिन 5 सवाल किए जाएंगे, उनमें एक आखिरी सवाल यही होगा, इल्म कहाँ तूने हासिल किया? इल्म कितना हासिल किया? इल्म कैसे हासिल किए? आज हम जो है दुनिया की सारी चीज तो करने को होता, इल्म हासिल करने का वक्त नहीं होता है। तो मेरे बच्चों ये आखिरी बात हमारी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इंशाअल्लाह आइंदा सैटरडे को औलाद के हक में वालिदैन की दुआ कबूल की जाती है। औलाद के हक में वालिदैन की दुआ कबूल की जाती है, और 3 किस्म की दुआएं कबूल की जाती है जिनकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। इंशाअल्लाह इसके बारे में इंशाअल्लाह आइंदा सैटरडे को लास्ट होगा, क्योंकि ये 5वां लेक्चर्स हो गया वालिदैन पर। तो इंशाअल्लाह उसके बाद आप लोग जो कहेंगे उस पर हम करेंगे। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमने जो भी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में कही, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले आपके उस्ताद शमशीर को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और आप लोगों को भी, और जो भी इस दुनिया में अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिलों में मोहब्बत डाल, उनके दिलों में तो अपना खौफ डाल, ताकि वो अपने माँ बाप की वो खैरियत पूछ सके, माँ बाप को खुश रख सके, माँ बाप को खुश करके जन्नत में जाने का वो सर्टिफिकेट को ले सके। नहीं तो अल्लाह के नबी ने कहा, रग़िम अनफुन, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक मिट्टी में मिले, वो इंसान हलाक हो जाए, वो इंसान बर्बाद हो जाए जिनके माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना खरीद सका। तो कोई सवाल हो आप लोगों का तो पूछें। तो हेलो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हर जगह शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।